السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال۔ ناظرین، جمعہ کا دن ہے اور 11:30 ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو حرم مکی میں لے کے چل رہے ہیں اور وہیں پہ جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں خانہ کعبہ اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، میں پہنچ چکا ہوں اور یہ جگہ اجیاد کا علاقہ ہے اور ہم یہاں سے اب سیدھے چلتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اور وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اجیاد کا علاقہ ہے اور یہاں سے لوگ سیدھے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم وہیں پہ چل رہے ہیں اور ادھر دیکھیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، لوگ پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو یہاں پہ پانی تقسیم کیا جا رہا ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے تمام کے تمام لوگوں کو جو اس میں کام کر رہے ہیں یا جو اللہ رب العزت مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں پانی پلا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ یہ دیکھیں، یہاں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ جمعیت ہے احسان کے نام سے اور اسی کی جانب سے یہ پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کافی رش ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، کس جگہ کی طرف ہمیں بھیجتے ہیں، کیونکہ جمعہ کی وجہ سے کافی بھیڑ رہتی ہے اور پتہ نہیں رہتا ہے کہ مجھے کہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے موقع ملے گا۔ اور دیکھیں، یہ اس طرف یہ روڈ کا ایک حصہ جو پورا نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اب سے ہمیں دوسری طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے۔ یہ ادھر نیچے جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ راستہ ہے، لیکن راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ نیچے جائیں گے تو نیچے وہی راستہ ہے جو راستہ عزیزیہ کی طرف یا ظاہر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ملک عبدالعزیز اور ملک فہد رحمہ اللہ کے سامنے کا جو حصہ ہے، جو صحن ہے، وہ مکمل طور پر نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم اس طرف چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں جگہ ملتی ہے۔ ناظرین، ہم اجیاد گیٹ کی طرف چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں کس طرف موڑتے ہیں اور کہاں لے کے چلتے ہیں۔ جمعہ کی وجہ سے کافی رش ہے، بہت بھیڑ ہے۔ کیونکہ پہلی اذان ہو گئی ہے، اس لیے اور زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے۔ بس کوشش یہ رہے کہ دھوپ میں کہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے اور زیادہ دیر آپ دھوپ میں رہ نہیں سکتے۔ یہ صفحہ ہے سامنے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ نیچے کا پورشن دیکھیں، نیچے کے حصے دیکھیں، نیچے خالی ہے اور اندر ہو سکتا ہے کہ بھیڑ ہو، لیکن ادھر جانا منع۔ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے اجیاد کی طرف سے آ رہے ہیں، سب کو اسی طرف پہنچ رہے ہیں۔ چلتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے، یہ صفا پہاڑی کا حصہ ہے اور فرسٹ فلور ہے اور اندر لوگ صفا مروہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ حرم میں آ رہے ہیں اور سوچیں کہ میں جہاں پہنچوں وہیں پہ مجھے جگہ مل جائے، تو یہ ناممکن ہے، چلنا پڑتا بھائی۔ اس لیے تمام سے جن کو اللہ رب العزت نے مال دولت سے نوازا ہے، بہتر یہی ہے کہ جب تک بدن میں طاقت رہے، طاقت کے رہتے ہوئے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں، کیونکہ جب آپ عمر دراز ہو جائیں گے، طاقت ختم ہونے لگے گی، تو پھر یہاں پہ آئیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، تھکے ہوئے رہیں گے، ارکان کے ادا کریں گے، واجبات کے ادا کریں گے۔
लिए जवानी में ही हज और उम्रा की सआदत हासिल करनी, यही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को मौका दे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार कर सके। इधर गज़ा का इलाका है, जो लोग गज़ा की तरफ से आ रहे हैं उनको इधर नहीं आने दे रहे हैं। हज्जाज की तरफ जो भी आ रहे हैं हज्जाज से या फिर गज़ा से, तो फिर सबको इसी रास्ते की तरफ ही ऊपर जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए, तो यहाँ पे बैठे हुए तो इनको यहाँ से उठा दें। और उसकी वजह भी है कि जुमा के बाद जब लोग निकलते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, तो कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हिफ्ज़ व अमान में रखे। मरवा के सही वाला इलाका है, तो मैं पहुँच गया हूँ और ये अब जिसका मुझे अंदाज़ा था वही जगह है, सफ़ा मरवा की सही वाली जगह। और इधर देखें ग्रीन लाइट है, 3rd फ्लोर है और मैं सफ़ा की तरफ जा रहा हूँ। उधर देखता हूँ उधर जगह है, वहीं पे नमाज़ जुमा अदा सब वही जगह है। और इधर कोई नई तामीर हो रही है, नहीं मालूम क्या है ना, इसके सामने ही खाने काबा। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान खाने काबा में जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद बाहर निकल लें। और ये जो जगह है ये सफ़ा मरवा की जगह है जहाँ पे चक्कर लगाते हैं। और ये 3rd फ्लोर है। यहीं पे अभी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से नमाज जुमा की अदायगी की तौफ़ीक मिली। काफ़ी रश है और लोग निकल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इंतज़ार करता हूँ ताकि भीड़ कुछ कम हो जाए, उसके बाद तो बाहर निकल जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। अब देखें इधर लोग निकल रहे हैं इस रास्ते से, बहुत भीड़ है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं माशाल्लाह, जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए आए हुए। और इधर दूसरी साइड में इधर सफ़ा है। जो लोग भी नमाज अदा करके फारिग हुए हैं उनको वापसी के लिए सफ़ा से कह रहे हैं कि सफ़ा से मुड़ करके तब जाएँ। आइए चलते हैं, पहले ज़मज़म पीते हैं। और ज़मज़म पीने की जो दुआ है वह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। तो आइए ज़मज़म पीते हैं। अभी इसको बंद कर दिया गया है भीड़ की वजह से, तो दूसरे साइड में चलते हैं, वहाँ पे ज़मज़म पीते हैं। जो लोग सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते हैं व्हील चेयर के ज़रिए, तो ये ऊपर आते हैं और यहीं से सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते हैं। देख रहे हैं लोग सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं व्हील चेयर के ज़रिए। ये एक हाजी साहब है, उन्होंने देखा तो हाथ हिलाकर आप तमाम को सलाम करते हैं। और ज़मज़म का है लेकिन काफ़ी भीड़ है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद लोग फारिग हुए तो हादीस में आता है कि दुआ करें और दुआ करने के बाद ज़मज़म पिए और ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो दुआ की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस दुआ को कबूल करे। और ज़मज़म पिए तो इंशाअल्लाह अगर सच्ची दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ आपने दुआ की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने घर का दीदार करने की तौफ़ीक दे। आए यहाँ पे तवाफ़ करें, सही करें, उम्रा करें, हज करें और ज़मज़म पिए। भीड़ ख़त्म हो गई है और अब इसके बाद मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये लोग नीचे उतर रहे हैं, इधर पूरा खाली हो गया है और उधर भी सब खाली हो गया है, क्योंकि इधर काम चल रहा है। और चलते हैं नीचे। इधर देखें लोग नीचे तवाफ़ कर रहे हैं और धरती पे और ऊपर जो
बना हुआ एस्केलेटर का है। एस्केलेटर पे लोग यहाँ पे अपने काबा का सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे लोग सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं। नाज़रीन, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच गया हूँ और इधर सामने का जो हिस्सा है वो गज़ा का इलाका है। और आप सामने जो घर देख रहे हैं, इसी घर के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी घर में हुई है। और इसके बारे में मैंने मुकम्मल तौर पर एक वीडियो बनाया है जिसमें इसकी तारीख़ और मुकम्मल तौर पर इसकी तफसील बयान की गई है। आप हमारे उस वीडियो को देखें, उसमें सब कुछ आपको बताया गया है। नाज़रीन, ये गज़ा का इलाका है और असल जो आबादी थी ज़माने जाहिलियत में और इस्लाम के बाद जब इस्लाम आया तो उस वक्त भी असल जो आबादी थी मक्का की वो इसी साइड में थी। दूसरे साइड में जिधर आप बाब मलिक फ़हद देख रहे हैं या बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है, वो उधर आबादी नहीं थी, ज़्यादा आबादी इसी साइड में थी। और ये देखें, लोग जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। नाज़रीन, आप इसको देखें और जो लोग यहाँ पे हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए आए हैं तो वो इस वीडियो को देख करके ये एहसास करें कि वो मक्का मुकर्रमा में घूम रहे हैं, उसकी सैर कर रहे हैं, खाने काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। तो इसको आप देखें। तो नाज़रीन, ये था जुमा के मुतालिक मेरा वीडियो। उम्मीद की आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।